Kingdom. Basically, he's a Pakistani, and let's have a brief introduction about him. Mr. Nosharwan Akram, the senior partner of Jump Curve, an international management consultant, a corporate trainer, and the coach. Basically, Mr. Nosharwan is a regular invited on to facilitate and speak at the global business forums, including the Procter and the Gamble United States and the Young Presidents Organization. He's a certified master level complexity thinking advisor in applied innovation and creative problem solving, and has attended the Advanced Instructor Facilitator program at the Langwin Learning Services, the world's largest train the trainer company based in the United States. So welcome to this show, and I hope you are fine here. Thank you, Farhan. Thank you for the opportunity. Looking forward to talking to your audience today. Sir, you are most welcome here. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करवा दें हमें, और योर स्टोरी दैट आफ्टर द स्टूडेंट लाइफ, हाउ टू यू रीच टू दिस पॉइंट कि जहाँ पे हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ का अप एंड डाउन आता रहता है इन डिफरेंट एरियाज. तो हाउ यू रीच टू दिस पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ. So basically, कल की बातें लगती हैं, but I basically graduated in electronics engineering from the UK, और उसके बाद मेरा जो early part of my career है, I've spent working with power companies. So I started my career with Alstom Power in the UK. So working with very senior chief engineers, working on projects, working as a design engineer. So I think that grooming helped me a lot from the very beginning. In terms of being very analytical. उसके बाद I did my MBA from the UK again, और MBA के बाद पता लगा कि the world is not binary, so the answer is not 1 or 0, and you don't have to be a perfectionist. So before my MBA I was pretty much trying to get 10 out of 10 and perfection. Then MBA के दौरान बड़ा interesting है, मेरे प्रोफेसर ने बताया कि the best answer to any question is, especially if you don't know the answer, you give the answer, it depends. So that's always a good answer that gets you out of a lot of difficult situations. No, but jokes apart, after my MBA, I transitioned from technical and engineering roles into commercial and business improvement positions. So the last, in total, I've been out, for 19 years experience. और जो मेरे last 10 साल का experience है, that's been working as a consultant in the area of helping companies develop their strategies, helping companies improve their business processes, and then basically bringing about real change in organizations through people and process. So that's a huge journey that has been compiled within a few minutes. But it's a good point कि आज basically I'm also an engineer, तो as engineers के साथ ही हम लोगों का एक interaction हो रहा है. Moving forward, आज हम लोग चूँकि प्योर टॉपिक जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, because you had told that you have a detailed experience of about 19 years professional experience. So we had selected the topic that how to stand out as a leader in post-corona world. So in this topic, we have some divisions. I think at least two divisions. That one is post-corona world, and second is how to stand out as a leader. So first of all, I want to know that how do you define what a leader is? Yes, that's a great question, Farhan. And I think leadership has always been a very important topic. लेकिन जो आजकल के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, I think this will really
distinguish between some very good leaders and some ordinary leaders. So जब आप leadership की बात करते हो, so there are few things that are very different about a leader. I think पहली चीज़ तो ये है, in very simple words, a leader has to make a decision, right? So they have to decide, that's one. And then second thing, once he's taken a decision, he has to deliver. So if you have to simplify the definition of leadership, it's that. A leader does two things and they do them very well. He decides or she decides and then they deliver. बाकी चीज़ें लीडरशिप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप हैज़ टू लीडर हैज़ टू ड्रॉ द विजन ऑफ द कंपनी. So he has to be able to excite people. He has to show them, where are we headed, and answer the question क्यों, why. और अगर लीडर का काम है engage करना ऑर्गेनाइजेशन में people को, so they follow. Leader doesn't have to do the work himself, but a leader has to influence, has to engage, has to motivate the people to follow the path that he set for them. So I think that's probably a good definition of leadership, and also influencing people. वो कहते हैं ना, hearts and mind, दो चीज़ें आपको चाहिए. So you have to win the heart because it's important. We are humans and human touch is important, but then also the minds. जब ये दो चीज़ें आप लोगों की win कर लेंगे, then I think you're a true leader and teams will love to follow you. So that's the definition of leadership. That's great. और इसमें सर एक पॉइंट जो आपने ऐड किया, that's of why. I think what I had learned till now, that every decision should be based upon why. Now moving forward to the second part of this topic, that's post-corona world. No doubt that we have been going on through this crisis. Whole world is under this. How you see this post-corona world, and Sure. how you link with this leadership? How? Absolutely. So just to basically mention to the audience as well. So although my experience UK में काफ़ी रहा है, but the last 3 years I've been working in Pakistan. So I'm working as an advisor with a lot of companies, both corporates and large local organizations. So उसके अंदर couple of weeks back हमने एक CEOs की round table कराई पाकिस्तान में, just to ask the same question, right? So because it's important to understand what these leaders are thinking about their respective organizations, and also what the coronavirus pandemic, what does it mean for them. तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने उनसे सर्वे भी करवाया पहले बिफोर द राउंड टेबल, और एक क्वेश्चन हमने उसमें डाला था डिलिबरेटली कि हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि नॉर्मल सी कब आएगी वापस. तो जब कुछ CEOs ने डिफरेंट जवाब दिया, किसी ने कहा जी 3 महीने, किसी ने कहा 3 साल, किसी ने कहा समवेयर इन बिटवीन. तो जब हमने राउंड टेबल कराई तो उसमें हमने पूछा, क्लैरिफाई किया कि जी इतनी ज़्यादा मतलब रेंज है आपकी 3 महीने से लेकर 3 साल तक, व्हाट वर यू गाइस थिंकिंग. तो उनमें से एक CEO था, ही वाज वेरी स्मार्ट. उसने हमें वापस क्वेश्चन पूछा एज अ फैसिलिटेटर. उन्होंने कहा पहले आप ये तो डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल, राइट? सो हाउ डिड यू डिफाइन द न्यू नॉर्मल. बिकॉज अभी भी मैं आपको बताऊं फरहान, कुछ CEOs ये सोच रहे हैं कि वो नॉर्मल वो होगा फ्यूचर जो पहले था, जबकि कुछ CEOs कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता. सो दिस क्वाइट स्प्लिट ओपिनियन what the future holds. But regardless of that, what I can tell you is that we talked about the definition of leadership. This is also, कहते हैं ना, ये watershed moment है companies के लिए. And for those companies that are prepared to take it as an opportunity, challenge their thinking, their mental models, their previous ways of doing things, they are the ones who are going to be more successful. Henry Ford का एक बड़ा famous quote है which I love. He says, if you always do what you have always done, you will always get what you always got. So simply अगर आपको results बेहतर चाहिए, so you've got to be prepared to challenge the status quo. McKinsey ने एक study recently की और कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक report शाया की. उसकी जो मैं आपको बस main highlights बताऊंगा, जो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया इसके ऊपर. उन्होंने कहा कि different stages हैं. पहली स्टेज ये है कंपनीज की जिसमें से पास थ्रू करेंगी. पहली स्टेज को कहते हैं रिजॉल्व, जिसका मतलब है कि इमीडिएटली जैसे क्राइसिस आया, हाउ विल यू मैनेज द क्राइसिस, राइट? सो रिमोट वर्किंग उसमें हो जाएगी, बाकी चीज़ें हो जाएगी. सेकंड स्टेज आपकी है जिसके अंदर यू हैव टू मैनेज फॉर थिंग्स लाइक कैश फ्लो, बिकॉज अगर कैश फ्लो कंपनी का खत्म हो जाएगा, सो यू आर हिस्ट्री. इसीलिए वो कहते हैं ना, कस्टमर्स कम फर्स्ट इवन बिफोर एम्प्लॉयज़, बिकॉज कस्टमर्स होंगे तो आप एम्प्लॉयज़ को उनका ख्याल रख सकेंगे, उनकी सैलरीज दे सकेंगे, राइट? सो सेकंड स्टेज के अंदर इट्स अबाउट लिक्विडिटी, कैश फ्लो मैनेजमेंट.
थर्ड स्टेज के अंदर दे सेट कि जी यू देन हैव टू गेट रेडी टू कम बैक टू द नॉर्मल। उसका मकसद ये था कि जो चीज़ें लेट से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्रीज को बंद किया हुआ है या प्रोडक्शन रिड्यूस की हुई है, अब आपको रैंप अप करना है, वापस उन लेवल्स पे जाना है। लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान यू माइट हैव लेट गो ऑन ऑफ योर एम्प्लॉइज, you might have not trained your employees in that period or your people are not motivated। सो वापस उन लेवल्स पे आपने कैसे चीज़ों को लेके जाना जो पहले थी, उसके लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी सोच की ज़रूरत है। रीएक्टिवेशन करनी पड़ेगी आपको सप्लाई चेन की, हो सकता है लोगों को रिहायर करना पड़ेगा, रीट्रेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो अगला फेज़ है विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है आप देखते हैं लोगों की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। अगर आप देखें बहुत से लोग अब रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, राइट। आप देखेंगे जूम का शेयर देखें प्राइस कहाँ चली गई है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की अगर आप कहें और आपके पास शेयर्स होते तो आई थिंक यू वुड हैव डन रियली वेल इफ यू हैड बॉट इट इन द राइट टाइम। सो ये यूज़र की प्रेफरेंस, आपकी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, आपके सिटीजन्स की प्रेफरेंसेस, आपके एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस चेंज हुई। सो अगेन वो कंपनीज जो तो इन प्रेफरेंसेस की चेंजेस को अच्छी तरह वॉच कर रही हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसके मुताबिक लेके आएंगे, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू गेट अ डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज जब हम वापस नॉर्मलसी की तरफ आएंगे। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू ये कंपनी सब गुजरे। एग्जैक्टली दैट्स काफ़ी सारे आपने पॉइंट्स असेंबल कर दिए हमारे इस टॉपिक की आंसर में, और आई होप दैट ऑडियंस को हम लोगों के पास एटलीस्ट बेसिक्स इस पॉइंट की क्लियर हो गई है एंड दे विल फॉलो द क्वेश्चंस जो भी हम लोगों के पास है, साथ साथ हम लोगों के पास कमेंट्स में शेयर करते रहेंगे। However, some of the questions that I had decided to share with you, move on to those one. First question from my side is that how do you visualize and forecast the post-corona world? उसमें से कुछ तो पॉइंट्स आपने अभी क्लियर कर दिए हैं on all those points, but ये है कि in your perspective how do you see कि वही हम लोगों के पास वर्ल्ड चेंज होगी या हम लोगों के पास एक ह्यूज डिफरेंस आएगा? देखिए जी, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काफ़ी चेंजेस आएंगी और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और फिर हम लीडरशिप की भी बात कर सकते हैं कि लीडर का रोल क्या होगा उसके अंदर। पहले तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सी चेंजेस आएंगी और कंपनीज को अपने लिए उन चेंजेस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। उसको हम मैनेजमेंट में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक तो है एजिलिटी। एजिलिटी कहते हैं कि आपकी स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है, और एक और हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो नई चेंज आ रही है, हाउ कैन कंपनीज बिकम प्रोएक्टिव, ताकि वो चेंज को ना सिर्फ एम्ब्रेस करें बल्कि उसको लीड कर सके, राइट। सो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है इट्स गोइंग टू बी अराउंड अडेप्टेबिलिटी। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्ट टू दिस काइंड ऑफ चेंज। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, और ये ऐसा एक इशू है जो सीईओज की जो कहते हैं ना रातों की जो नींद हराम होती है वो इन पे हुई है। वो ये रहा है कि बेसिकली बहुत सी अनसर्टनिटीज एक वक्त पे इकट्ठी आती है। एक तो होता है ना आपके पास एक वेरिएबल है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। सो एक वक्त पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल भी अच्छा रखना है, ठीक है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक रखनी है, एट द सेम टाइम आपको कॉस्ट कटिंग भी करनी है, राइट। एट द सेम टाइम आपकी मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है। अगर कुछ कंपनीज पहले कर रही थी सेलिंग थ्रू अ चैनल, थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, अब हो सकता है उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स यूज करके डायरेक्ट जाना पड़े। सो बहुत बड़े फैसले आपको करने, राइट। सो इसके अंदर अनसर्टनिटीज जो है ना एक वक्त पे इकट्ठी आ गई। हाउ टू मेक सेंस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल मैं समझता हूँ जो लीडर्स को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और बाय द वे मुझे आइडिया है कि आपके जो ऑडियंस है उसमें स्टार्टअप्स और एसएमई से भी काफ़ी लोग हैं। सो जब मैं लीडर की बात करता हूँ तो लेट मी क्लैरिफाई, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स ऑफ दो स्टार्टअप्स, बिकॉज फाउंडर्स को भी ये बहुत मतलब ये स्किल्स जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अप्लाई करें। So this is a good advice from your side for all of our SMEs and the startups, क्योंकि हम लोग के पास majority जितने भी हम लोग के पास audience हैं, all of those belongs to that side. We have a conference in the coming days of investing, तो उस पे ये है कि हम लोगों के पास SMEs and startups ही ज़्यादा होंगे. So this is a very good advice for all those. So now moving forward,
to the second question, that what will be the challenges and the key opportunities for the organizations and leaders, obviously. सो उसमें हम लोगों के पास पहले हम चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं, फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चलते हैं. सो व्हाट द चैलेंजेस आर इन द फ्यूचर फॉर द लीडर्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. देखें जी, सबसे बड़ा तो चैलेंज असाइड अनसर्टेनिटी को डील करना, जिसकी बात की, और उसके लिए अडेप्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो एक मेन चैलेंज वो ये है फॉर अ लॉट ऑफ लीडर्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल्सो फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स, कि एक आपको प्लानिंग करनी है आज के लिए, राइट, कि आज का कैश फ्लो है कि नहीं है. और मसला ये कि खाली आज की प्लानिंग में नहीं आप रह सकते, क्योंकि आपको फ्यूचर को भी देखना है. तो आई थिंक एक चैलेंज तो ये है, हाउ कैन यू प्लान फॉर टुडे बट एट द सेम टाइम ऑल्सो प्लान फॉर द फ्यूचर. क्योंकि अगर आप दोनों को आपने एक वक्त पे करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ आज की प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है आपका जो बिजनेस मॉडल था वो वैसे ही डिसरप्ट हो जाएगा. सो यू माइट बी आउट ऑफ बिजनेस एनी वेज. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, क्योंकि कंपटीशन जो आपका है वो सो नहीं रहा, वो भी प्लानिंग कर रहा है, वो भी स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहा है. सो इसीलिए आपको एक वक्त में हाउ कैन यू प्लान फॉर टुडे एट द सेम टाइम प्लान फॉर द फ्यूचर. इसके अलावा आई मीन ऑब्वियसली ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको एक वाइड कवरेज दे दूँ, फिर आप जिस टॉपिक पे चाहेंगे वी कैन डीप डाउन. इसके अलावा कैश फ्लो, ऑब्वियसली दैट इज़ अ बिग थिंग ऑन द माइंड ऑफ लॉट ऑफ पीपल. वो कहते हैं ना कि कैश इज किंग. मैं समझ रहा हूँ जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं इसको भी आप रीवर्ड कर सकते हैं. टाइमली कैश इज किंग. अगर आपको कैश टाइम पे ना मिले तो फिर भी आपकी खैर नहीं. तो कहते हैं ना कैश इज किंग, लेकिन वही कैश जो अगर आपकी पेमेंट टर्म्स मंथ की थी, इस दौरान हो सकता है आपको कस्टमर पे ही ना करें टाइम, क्योंकि वो अपना कैश फ्लो ठीक करना चाह रहे हैं. सो आप इमेजिन करें कि पूरा वैल्यू चेन, इसी तरह आपके सप्लायर्स भी हैं, हो सकता है आप उनको भी कैश ना दें टाइम पे. सो यू नो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ सीईओज, और अब ये भी मसले मसाइल हैं. अगर आप लेट्स से कोई फूड बिजनेस है, उनकी रेंटल प्रेमिसेस है, उनको रेंट देना, they are not able, क्योंकि उनकी डिमांड गिर गई है. सो दे आर डाउन टू 30% of what they normally used to do before corona pandemic came. So how do they manage the cash flow? So in some instances they are talking to their landlords and saying कि जी महीने के रेंट के अंदर आप हमें सब्सिडी दे दो. सो आई थिंक कैश फ्लो would be another one, so very very important. और उसके अलावा आई थिंक दूसरी चीज़ ये कि अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करें. जो आपने स्ट्रैटेजी पहले बनाई थी इट माइट नॉट बी रेलेवेंट. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपके फाउंडर्स भी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर पीपल इज टू रीच आउट टू पीपल आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह कहते हैं ना कोचिंग, बाहर का ओपिनियन भी लोगों से. आपको अच्छे कोचेज या अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, वो टॉपिक, बिकॉज होता पता है क्या, आपकी जो थिंकिंग की क्लैरिटी नहीं रहती अक्सर. इस सिचुएशन में दिमाग आपका इतना पजल हो जाता है अनसर्टेनिटीज़ के अंदर कि यू आर नॉट एबल टू थिंक वेरी क्लियरली. तो जब मैं कह रहा हूँ ना कि आपने रीस्ट्रेटेजाइज करना है या अपनी पुरानी जो आपकी असम्पशंस हैं उनको टेस्ट करना है, तो आप खुद भी करें, लेकिन मेक श्योर करें कि किसी आउटसाइड बंदे के साथ भी उन चीज़ों को बाउंस करें, ताकि आपको एक और लेंस और एक और पर्सपेक्टिव मिल जाए. आई थिंक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. फाइनली आई थिंक द अदर थिंग आई वुड इमेजिन कपल ऑफ मोर थिंग्स. एक तो जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस, यू नो हर चीज़ का प्रोसेस है, उस प्रोसेसेस को भी रिविजिट करें, क्योंकि इतनी चीज़ें फास्ट चेंज होंगी. क्या जो आपके प्रोसेसेस आपने डिज़ाइन किए थे, तो प्रोसेसेस के अंदर आपके बहुत से प्रोसेस आ गए. प्रोक्योरमेंट का आपका प्रोसेस है, आपका ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है एम्प्लॉइज़ का, राइट, आपका प्रोक्योरमेंट टू पे है, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, कैश फ्लो आपने कस्टमर. इन सब प्रोसेसेस को दोबारा देखें, क्या ये प्रोसेसेस आज भी वैलिड है कि नहीं वैलिड. फाइनल चीज़ फरहान जो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ह्यूमन टच को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है. और वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें, एक लोगों की ज़िंदगी है जो स्टेक पे है ड्यू टू कोरोना वायरस, और दूसरे लोगों की लाइवलीहुड. ये दो चीज़ें. सो आई थिंक एज ए लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके साथ कम्युनिकेशन को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करें और सीधी बात करें. डोंट गिव देम आई एम बाय शाइन, यू नो, स्ट्रेट बात करें, ऑनेस्टी से करें, एंड देन इंकरेज देम कि जी ये हमारी सिचुएशन है, यहाँ खड़े हुए, we'll work as a team, we'll try to make sure your jobs can be protected for as long as we can, but it will require all of us to work as one team, because इन हालात में जी मतलब आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है ना एज एन एम्प्लॉय वो थ्रेटेंड हो जाती है. और जब वो थ्रेटेंड हो जाती है, यू नो यू नॉट क्रिएटिव एनी मोर, यू आर मोर वरीड अबाउट कि अब मेरा जॉब अगले महीने होगा कि नहीं. सो उस पर ज़रूर फोकस करें. वी आर ऑल ह्यूमन्स,
सो वी हैव टू कनेक्ट एट द ह्यूमन लेवल, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके वेंडर्स हैं. दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. So I think the last point is the most fundamental one, that communication should be continued, और वो एक straightforward manner में एक honesty के साथ हम लोगों के पास between the employer and employer should be continued. Moving to the second part, that's about the key opportunities that has been generated for the organizations and the leaders. So what do you think these opportunities had been generated by this corona or COVID-19? जी बिल्कुल, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी एंड दिस डिपेंड्स ऑन सेक्टर टू सेक्टर. लेकिन आई थिंक प्राइमरीली तौर पे अगर मैं इसको देखूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द वे दैट दीज लीडर्स कैन, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि इस अरसे में अपने कस्टमर्स के साथ हुक्ड अप रहें, अपने कस्टमर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस को पहचानें, उनके साथ डायलॉग एक्टिव रखें. क्योंकि अक्सर देखें, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल, सम गुड वंस आल्सो, बट होता ये है कि लेट्स से आपका सेल्समैन, राइट, वो इंटरेक्ट कर रहा है कस्टमर से, एक इन्फॉर्मेशन उसके पास है. सेल्समैन के पास सबसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टिपिकली होती है, बिकॉज वो कस्टमर के साथ डेली डीलिंग करता है, एवरी फ्रीक्वेंट बेसिस. लेकिन जब आप बोर्ड रूम में चले जाते हैं तो एक और रियलिटी है, और अक्सर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि चेंजिंग प्रेफरेंसेस कितनी जल्दी चीज़ें चेंज कर रही हैं. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है कि वो कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करें, फ्रॉम अ सेल्स गाय टू द गाय एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर और सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द ओनर. सो उनकी जो आपसी कोलैबोरेशन है, दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव. क्योंकि लेट्स से कस्टमर्स की कुछ प्रेफरेंसेस चेंज हुई हैं, राइट, या उसको कंपटीशन के बारे में सेल्समैन को पता लगे कि बाकी कंपटीशन क्या कर रहा है. दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू वेरी क्विकली ट्रिकल अप टू पीपल हु आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी. सो आई थिंक इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उन कंपनीज़ को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि प्रोएक्टिवली अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज हैं. और इंगेज करने का तरीका बहुत सिंपल है. द टिप आई विल गिव इज गो एंड ट्राई टू हेल्प योर कस्टमर्स, राइट. गो आउट देयर, बी प्रोएक्टिव, आस्क देम कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, हाउ यू कैन हेल्प देम सॉल्व योर चैलेंजेस. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, और उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इनोवेशन की, बिकॉज वो जिस तरह कहते हैं ना, बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग, या इफ यू यूज दैट मेथोडोलॉजी, इट्स ऑलवेज कस्टमर फर्स्ट. उसका हम यूज़ करते हैं लव्स वॉइस ऑफ द कस्टमर. इसका मकसद ये कि रियली अंडरस्टैंड, एक्टिवली लिसन, कि जी हमारे कस्टमर की नीड्स कैसे चेंज हुई है. अक्सर औकात फ़रान ये होता है कि कस्टमर को भी नहीं पता होता कि उसका रियल इशू क्या है. सो दैट कम्स थ्रू डायलॉग बट ऑल्सो एक्टिवली लिसनिंग. सो इसमें एक और एलिमेंट हम लेटर ऑन बात करेंगे, इन द सेंस कि आपको डेवलप किन एरियाज में एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सनल स्किल्स कौन सी डेवलप करनी है, तो उसमें बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग की. So I think opportunities are definitely there, and therefore this requires innovation. Innovation not just about the product innovation, but also process innovation, but also challenging the mind. हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये होता है कि हमारे माइंडसेट्स जो है वो बहुत ब्लॉक्ड है या फिक्स्ड माइंडसेट्स. और जिस Exactly. एज में अब हम हैं, अगर हमारे माइंडसेट बहुत फिक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखें तो हमें ये पता लगेगा, जिन पुराने, अगर हम देखें कंपनीज जिनकी 200 साल से ज़्यादा हिस्ट्री थी, एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया था, उसकी 225 साल की हिस्ट्री थी, और जब उसका फॉल आया, इट जस्ट टुक 1 or 2 years एंड इट फेल. और उसका फॉल आने का मेन रीज़न ये था कि वो कंपनी के उस वक्त सीनियर मैनेजमेंट थी, दे थॉट कि हमें कोई भी डिसलॉज नहीं कर सकता, वी नो इट ऑल. सो आई थिंक माइंडसेट को चैलेंज करना और ओपन रखना बहुत ज़रूरी है. So as you had mentioned कि हम लोगों के पास mindset and especially हम लोगों के पास जितने भी audience from the Pakistan है, I would like to repeat this thing कि यार kindly इस mindset को जो change करने की एक frequency है, इसको आप kindly with the passage of time recheck करते रहा करें, because यहाँ पे हम लोगों के पास mindset change करना, that's one of the most difficult tasks. So बिल्कुल. moving forward, exactly. Moving forward, another question, that's how important will it be for the leaders to develop themselves professionally and personally in this time? Professionally तो हम लोग के पास obviously एक है ज़रूरत, और personal development भी.
But in current scenario, in this time, what would you like to suggest? Sure. इसमें मैं आपको आई गिव यू सम ब्रॉड गाइडलाइन बट आल्सो शेयर माय एक्सपीरियंसेस, और आपको मैं टिप भी दूंगा जो आई थिंक आपके ऑडियंस के लिए विल बी वेरी हेल्पफुल टू practically take and start doing something about it from tomorrow or maybe from today. I think पहली बात तो ये है कि I'll start with the famous quotation from American entrepreneur, and he basically said, you know, the illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write. यानी जाहिल लोग वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, वो लोग हैं who cannot learn, unlearn and relearn. अब ये 3 वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिफ्लेक्ट ऑन ऑल 3. तो लर्निंग का आपने सवाल पूछा है, जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, वो पहले भी इंपॉर्टेंट थी, वो आज भी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो उसमें तो कोई शक नहीं. अनलर्निंग का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप पूछ सकते हैं जी वाई इज अनलर्निंग इंपॉर्टेंट, क्या खाली लर्निंग से काम नहीं चल सकता? सो अनलर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने दीवार पेंट करनी है, तो दीवार पेंट करने में जो सबसे मुश्किल काम है वो पुराने पेंट को उतारना है. अगर आप पुराने पेंट को उतारेंगे उसमें आपको 70% एफर्ट लगता है, लेकिन अगर आपने अच्छा काम उसमें कर लिया तो जो अगला पेंट का कोट लगाएंगे वो बड़ा सॉलिड लगेगा, बड़ा इंप्रेसिव लगेगा, राइट? सो अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट भी यही है. अगर आप चाहते हैं कि नई लर्निंग स्टिक करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले कुछ चीज़ों को आपको अनलर्न करना पड़ेगा, राइट? वो कौन सी चीज़ें अनलर्न करने वाली, और आपको कैसे पता लगेगा कि आपको अनलर्न करना है कि नहीं करना? तो उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि जब आप किसी चैलेंज में आके फंस जाते हैं, लेट्स से आपकी अपनी कंपनी है फ्रॉम, राइट, एंड यू आर अनएबल टू सॉल्व द चैलेंज, और आपने सारी पुरानी स्ट्रैटेजी जो आपको पता थी वो इस्तेमाल कर, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू थिंक यार मे बी व्हाट आई नो इज़ नॉट इनफ, मे बी नाउ आई हैव टू अनलर्न सम थिंग्स व्हिच आर नॉट वर्किंग. सो वो आपको एक चेक पॉइंट मिलता है कि यार अगर वही चीज़ें ट्राई की जो पहले करता रहा हूँ तो सोल्यूशन नहीं पहुँच मिलेगा. तो वो आपकी स्टेज है अनलर्निंग की. कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा. मसला ये है कि बहुत से लोग अनलर्निंग पे गौर ही नहीं करते, तो इसलिए जो उनकी लर्निंग है वो स्टिक भी नहीं करते. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरा पार्ट था एल्विन टॉफलर जो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर था, विच वाज रीलर्न. और रीलर्निंग का मकसद ये है कि जो चीज़ें आप पहले लर्न की थी लेट से कुछ साल पहले और वो आप भूल चुके हैं, उसके लिए रिफ्रेशर, वो भी बहुत रिकॉल. तो ये तो मैंने आपको खैर एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दी है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू रिमेंबर कि ये तीनों चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है. और जिस स्टेज से अब हम गुजर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अब ये चॉइस नहीं रही, इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट्स अ मस्ट डू. KPMG जो कि एक बिग 4 कंपनी है, उसने एक टर्म को इजाद किया था, लर्निंग एजिलिटी, राइट? एंड दिस इज़ फ्यू ईयर्स अगो. लर्निंग एजिलिटी का क्या मतलब? लर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है, उनका मतलब था कि तेज़ी से लर्न करें. सो द स्पीड ऑफ लर्निंग, कितनी जल्दी आप नई चीज़ें लर्न कर सकते. सो दैट्स अ वेरी इन लाइन विद द टाइम्स कि आपकी जो एजिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए और चीज़ें भी आपको ज़्यादा लर्न करनी पड़ेगी. सो आई थिंक हर लीडर को अपना खुद ही एहतसाब करना है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ. और जो मैं आपको टिप देने लगा वो तो ये है कि अगर आप पहले स्किल सेट्स देख लें कि आपको कौन सी चाहिए, जिनकी बात करेंगे आगे, और उसमें अपने आप को रेट करें कि आज लेट्स से बात कर लें, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज आपकी एबिलिटी क्या है, अपने आप को खुद असेस करें. 10 मीन्स आउटस्टैंडिंग, यू नो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और 1 का मतलब कि अभी आपने स्टार्ट भी नहीं की जर्नी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो अपने आप को रेट करें, लेट्स से, यू नो, वेयरएवर यू आर, आई डोंट नो, 5 6. फिर अपने आप को एक टारगेट दें, you know, within 3 months, where do I need to go? Let's say 9. You want to aim high, right? I know you are high potential yourself, so you aim. That's your inspiration, and that's also your gap. Then you go and do something about that skill. But ये self assessment का process बहुत ज़रूरी है as a starting point. तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आज कहाँ खड़े हैं, कोई भी improvement की बुनियाद तब होती है जब आपको पता हो कि आज आप कहाँ खड़े हैं उस skill के ऊपर. So that is very very important. और फाइनली आई थिंक लोगों को मोटिवेट करने के लिए फॉर पीपल ऑन द कॉल, मैं हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं उसमें भी एग्जांपल देते हैं पावर ऑफ 1%. और आई गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन. अभी डिजिटल मार्केटिंग की बात ही कर लेते हैं. सो साल में आपके कितने हफ्ते होते हैं फरहान? 52 वीक्स. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक हफ्ते में आपने सिर्फ 1% इम्प्रूव करना, ये आसान है कि मुश्किल? 1%. इजी टास्क. इजी.
और अगर आप 52 वीक्स बाकायदगी से हर हफ्ता इंप्रूव करें तो आपको 50% इंप्रूवमेंट मिल जाती है. विल यू टेक इट? या You will take it with both hands. So this is the power of 1%. हम अक्सर भूल जाते हैं. We just try to get to 10 out of 10 एक रात. अगर आप इसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे लेके आए, सो एक्चुअली यू कैन लर्न एनी स्किल. ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा जल्दी लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 1% का एग्जाम्पल इसलिए, यू कैन डू मच हायर. दैट्स मोस्ट आई थिंक हम लोगों के पास आज ये जो अभी तक कवर हुई है चीज़ें, उसमें ये वाले हम लोगों के पास बहुत एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे दैट एवरी आई थिंक यंगस्टर एवरी लीडर शुड अडॉप्ट, कि हम लोगों के पास विदाउट ऑल दीज थिंग्स हम लोग आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. और शायद यही इश्यूज थे कि हम लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे, जो अभी तक हम लोग स्टिल वी आर प्रेजेंट इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. तो हम लोग को ये मेन पॉइंट्स जो है ये वी शुड हैव टू अडॉप्ट. मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज़ अगर मैं ऐड कर सकूँ, इफ दैट्स ओके. ये भी मैं उस पाकिस्तान के अंदर देखिए, जब काम करते हैं तो आप काफ़ी लर्न करते हैं. और एक चीज़ मैंने ये भी लर्न की है कि हम लोग ना बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू कर देते हैं. आई थिंक जो स्पिरिट है ना, वो आपकी ये होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन अपने साथ. और अगेन समथिंग टू मोटिवेट पीपल, कि आप अपने आप से कहें कि हाउ कैन यू बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे, नंबर 1. एंड नंबर 2, हाउ कैन यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपनी बेस्ट वर्जन बन के दें. सो एक्चुअली अगर आप इस तरह सोचेंगे और दूसरे लोगों से कंपटीशन आपका नहीं है. आई नो जब हम भी स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो हम भी कंपटीशन करते थे. लेकिन आई जस्ट थिंक यू लर्न व्हेन यू गेट ओल्डर. देयरफॉर आई एम शेयरिंग इट फॉर माय यंगर ऑडियंस, is कि your competition is your own self, and that keeps you very positive and always charged. सो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव पे मूव करना है हम लोगों ने. Correct. कंपैरेटिव पे रहेंगे तो हम लोग वही वाला जो सेटअप चल रहा है उसी में हम लोग एग्जिस्ट करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक दिस प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे हम लोग के साथ डिस्कस किए हैं. दिस विल बी क्लियर टू आवर ऑडियंस. Skill needs to develop and to what are the key skills, यानी हम लोग के पास अभी करंट इस एज में कौन सी की स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भी, और हम लोग को भी उनको अडॉप्ट करना चाहिए. सो आई थिंक फर्स्ट यू शुड हैव टू टेक द पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान की जो एक हम लोग के पास एक रूटीन है, या हम लोग जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे किन स्किल्स की बेसिक ज़रूरत है एंड हाउ वी कैन डेवलप दो स्किल्स. ठीक है जी. मैं ऑब्वियसली आई विल फोकस मोर ऑन द सॉफ्ट स्किल. मैं आपको एक बात बताऊं, लिंक्डइन के ने भी अभी रिसेंटली फोर्ब्स के साथ रिसर्च की है टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, और उसमें कुछ टॉप 10 स्किल्स की लिस्ट भी बनाई है. सो मेरा फोकस ज़्यादा होगा सॉफ्ट स्किल वाली साइड पे, बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टेक्निकल स्किल्स like AI and Python and many other technical skills as well that people need to learn. और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और प्रेफेस कर देता हूँ कि सॉफ्ट स्किल इज़ हार्डर देन द हार्ड स्टफ. इसका क्या मतलब है? आजकल के दौर में येस दे आर बोथ इम्पॉर्टेंट, बट समटाइम्स हम समझते हैं इट्स ओनली द हार्ड स्किल, बट एक्चुअली बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू आर एबल टू गेट थिंग्स डन. यू हैव टू वर्क विद पीपल, और यही अक्सर आपका बैरियर भी बन जाता है टू ग्रोथ. सो दिस इज़ वेरी फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट. अच्छा, उससे पहले दो और चीज़ें फरहान मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. मैं समझता हूँ फॉर पीपल हु आर लिसनिंग, वन इज़ पैशन एंड द अदर इज़ पर्पस. और इस पे मैं थोड़ा सा जस्ट वेरी क्विकली आई वांट टू टच ऑन इट, बिकॉज स्किल्स की हम बात कर लेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ है. एक आप कहते हैं कि मैं बड़ा पैशनेट, राइट? सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग. सो पैशन होना ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, राइट? So let's say if anybody wants to improve their public speaking and they're passionate about it, you can see it. किस तरह पता लगता है? हर रोज़ बाप से आगे कहते हैं कि जी मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैंने सीखना. पैशन इज़ ग्रेट, और पैशन को हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये जिस तरह आपके बॉडी के डिफरेंट मसल्स होते हैं ना, तो ये आपका स्प्रिंट का मसल, जो 50 मीटर और 100 मीटर भागना है ना, तो पैशन है तो यू डू 50 मीटर, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड. लेकिन मसला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अक्सर ये होता है कि पैशन होने के बावजूद आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओ, और वहाँ आता है पर्पस. सो पैशन इज समथिंग, इंजन स्टार्ट हो गया आपका, ग्रेट, स्प्रिंट मसल. लेकिन जब आपने दौड़ना है लंबी दौड़, सो यू हैव टू डू अ मैराथन, राइट? सो मैराथन करने के लिए यू हैव टू गो द डिस्टेंस.
वहाँ अगर आपका पर्पस होगा, जो हमने पहले बात की थी शुरू में वाई की, वो अगर आपका पर्पस है तो फिर आप खुद ब खुद दौड़ेंगे, आपकी मोटिवेशन भी ऑटो ट्रिगर पे होगी, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच अबाउट इट। जिस तरह हमारी कंपनी है, वी हैव अ पर्पस, how to improve the livelihood of the general public. So that's how to improve, to make a difference in their lives. So that's a big purpose, right? दुनिया में और भी बड़ी कंपनीज है जिनका एक पर्पस है। पर्पस गिव्स यू एंड द एम्प्लॉइज यू वर्क फॉर इट, चाहे वो स्टार्टअप हो या वैसे भी हो, दे फील पैशनेट अबाउट इट एंड दे गो द लॉन्ग डिस्टेंस, मुश्किल हालात में भी जितना आजकल है, और अच्छे हालात में तो ऑब्वियसली दे आर मोटिवेटेड, राइट? सो आई थिंक ये दो चीज़ें मैं पहले प्रेफरेंस करना चाह रहा था, पैशन और पर्पस, इन दोनों की जरूरत है। उसके बाद अगर आप स्किल्स की बात करेंगे, सो आई थिंक आजकल के दौर में जो है सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आई थिंक वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज हम IQ की अक्सर बात करते हैं, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आजकल काफ़ी बात हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद इन इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम थोड़ा सा इसको डीप टाइप करें, इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक हम कहते हैं एम्पथी। एम्पैथी का मतलब सिंपैथी नहीं, सिंपैथी तो है ना किसी पे तरस खाना, एम्पैथी का मतलब है किसी के शूज़ में जाके उसको एक्सपीरियंस करना, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके वेंडर्स हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी बात मानो, लेकिन जब आप उनसे गुफ्तगू करें तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाके सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और सेकेंड स्किल है एक्टिव लिसनिंग, जो मैं समझता हूँ, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी ये मसला है, लेकिन स्पेशली हमारी कंट्री में यहाँ अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट इवन गुड लिसनर्स, राइट? वो कहते हैं ना, हेयरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। ज़्यादातर लोग हेयर कर रहे होते हैं, और हेयरिंग करते वक्त भी वो अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं कि मैंने अपना पॉइंट कब बात करना है। तो इस स्किल ना होने की वजह से हमें बहुत नुकसान आता है। एक तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते। सो लेट्स से फरहान, आपके पास एक बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन मैं आपको बात करने का मौका नहीं दे रहा, तो वो, या अगर आपने बात भी की तो मैंने आपको फटाफट चुप करा दिया, तो वो आपका आइडिया आप ही के पास रह गया और आप शेयर नहीं कर सके टीम के साथ। सो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, और एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि लिसनिंग स्किल्स एडवांस किस्म की, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप जोन्ड इन हैं मेरी बात के ऊपर, और मेरी बात से कोई पॉइंट निकालिए, रादर देन कि आप वेट कर रहे हैं कि आपने कब बात करनी है। सो आई थिंक ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर स्किल्स देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, I think it's a very important skill, चाहे आप फाउंडर हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपकी ये स्किल आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन वर्किंग ऑन द राइट प्रॉब्लम, डिफाइन करना है कि आप सही प्रॉब्लम पे काम करें, ना कि जंप करें सोल्यूशन की तरफ, then come up with many creative ideas and then converge on the best ideas. So I think problem solving is one of the key skills, complex problem solving for example. ये अगर आप Forbes की जो लिस्ट भी देखेंगे, it's I think one of the top 3 skills that people need to learn. So I would focus a lot on that. उसके अलावा I think resilience, जो एक लफ्ज़ काफ़ी यूज हो रहा है, resilience का मतलब I think easy words में बताऊँ, जब हम बचपन में हम सब ने सीखा था ना साइकिलिंग करना, तो आई एम श्योर आप भी काफ़ी दफ़ा गिरे होंगे, तो जब आप गिरे हैं तो आपने साइकिल में दोबारा बैठना है। सो दैट्स ए गुड एग्जाम्पल। सो इसी तरह अभी भी हमें बहुत सेटबैक्स होंगे, कुछ मेंटल, कुछ फिजिकल, कुछ फाइनेंशियल। सो रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप में रेजिलियंस नहीं है तो फिर ये सेटबैक्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो अगेन रेजिलियंस पैदा करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। और आई थिंक उसके अलावा एक दो और स्किल्स की अगर बात करूँ, एक तो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन। सो अगेन हमने बात की थी कंपनीज हैव टू बी इनोवेटिव। अब इनोवेटिव वो खुद नहीं हो जाएंगे, सो एम्प्लॉइज हैव टू बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू बिकम मोर क्रिएटिव, हाउ टू बी इनोवेटिव, एंड अगेन इट स्टार्ट्स विद द कल्चर। आप सॉरी, आपका सवाल है कोई फराज? No. सो क्रिएटिविटी इज वेरी, I was also जी क्रिएटिविटी I was also emphasizing the same point. जी श्योर। जो आपने अभी हम लोग के साथ इनोवेशन का एक पॉइंट आपने रेज किया, सो आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि इनोवेशन का हम लोग के पास वी आर लैकिंग ऑफ दिस थिंग। एब्सोल्युटली। तो हम लोग बेसिकली काम भी इनोवेशन की स्पेस में, जंप कर्व व्हिच इज द कंपनी दैट आई एम अ फाउंडर इन, जंप कर्व स्पेशलाइजेस इन इनोवेशन, सो आई कैन टॉक फॉर मेनी आवर्स ऑन दैट टॉपिक। दैट्स हाउ वी वर्क विद कंपनीज, हेल्प देम बिकम मोर इनोवेटिव एंड हेल्प देम ग्रो बेसिकली। उसके अलावा आई थिंक कपल ऑफ अदर स्किल्स आई लाइक टू टॉक अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए जिनकी जॉब्स एट रिस्क हैं या अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी दे हैव बीन मेड रिडंडेंट। आई थिंक नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट्स अ ह्यूज टॉपिक, but your ability to find and connect with people and communicate and
वो नेटवर्किंग का भी जो हमारा पाकिस्तान में व्यू अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों का वो समझते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब है कि यार मेरी जॉब लगवा दो. What they forget is जिस तरह आप like Fran, you are contributing, right? So you are going above and beyond to invite people on your forum. So networking का पहला प्रिंसिपल ये है कि इससे पहले कि आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कुछ दें, you first give something, then you expect something back. हम इसको रिवर्स अनफॉर्चुनेटली ले लेते हैं कि जी मेरा जॉब लगवा दें, नेटवर्किंग करनी है. दैट डज सो नेटवर्किंग के लिए यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज एंड यू हैव टू गो एंड हेल्प पीपल. Say I can help you, how can I help you? So networking is very important. I think final skill I would say is ability to be able to work remotely, because आपको पता है ये remote working is going to become a permanent feature, चाहे वो 50% ही हो कंपनीज के लिए. It's not going away. So ability to be able to work remotely while you are have the well-being, ये नहीं कि आपके hours जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे, वो पता लगा 16-17 घंटे आप काम कर रहे हैं. So the ability to step out of the work, focus on your well-being, reflect, spend time with the family, find the balance, and then at the same time जब आप काम करें तो आप पूरी तरह creative और productive. So remote working की skills are going to be paramount. मैं समझता हूँ इस पे भी बहुत काम करने की जरूरत है. So I think ये last point आपने भी mention किया about the remote working. No doubt that मैंने भी freelancing को experience किया है and much of our audience also belong to this field. तो freelancing हम लोगों को बहुत अच्छा एक platform develop हो गया है और that helps us to work all this remotely. और अब तो आगे हम लोगों के पास especially due to this COVID-19 लोग भी इस चीज़ को ऐसे ऐसे डेवलप कर रहे हैं और आई थिंक पोस्ट कोरोना तो टोटली ही हम लोगों के पास अबाउट 80 to 90% कंपनीज विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड. So moving forward, what you want to advise to our leaders at this current situation? What should they do for their employees? कह लें आप ये जो भी उनके पास उनकी एक ट्रैफिक है, what you want to advise them? आई थिंक लीडर्स के लिए डिफरेंट आई थिंक तो 2-3 चीज़ें आई वुड लाइक टू मेंशन. एक तो पहली चीज़ ये कि वो कहते हैं ना, डोंट हग द पास्ट. पास्ट में अगर वो कुछ उन्होंने चीज़ें की थी वो उस वक्त ठीक डिसीजंस थे, बट डोंट हग टू इट. उसको हग करके ना बैठ जाए. कीप द माइंड ओपन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने माइंड ओपन ना रखा तो इनोवेशन भी नहीं होगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी इन लाइन विद द टाइम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जब फिर आपकी बात कर रही है स्ट्रैटेजी आपने कैसी बनानी है, तो स्ट्रैटेजीज़ के अंदर जो दुनिया की बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल, वो यूज़ करती हैं सिनेरियो प्लानिंग. सो वेरी सिंपल वर्ड, सिनेरियो प्लानिंग का मकसद ये है कि स्ट्रैटेजी के अंदर भी आप 2-3 सिनेरियोज को प्रेडिक्ट करें, राइट. तो लेट्स से एक सिनेरियो ये है कि आपकी डिमांड, मैं एक बात कर रहा हूँ, 50% बढ़ जाए फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो आई नो देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग वेरी वेल राइट. फार्मा को आप ले लें फॉर एग्जांपल, राइट, एज वन एग्जांपल. सो एक आपका सिनेरियो है कि जी आपकी डिमांड 25 से 50% बढ़ जाएगी पोस्ट करोगे. एक हो सकता है आपका सिनेरियो कि नहीं जी डिमांड उतनी रहेगी जितनी पहले होगी. हो सकता है एक आपका तीसरा सिनेरियो कि आपकी डिमांड विल गो डाउन 50% और अप टू 50%. सो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास 3 डिफरेंट सिनेरियोज के लिए स्ट्रैटेजीज होंगी. तो जब आपकी स्ट्रैटेजी 3 डिफरेंट सिनेरियोज पे और हालात अगर वैसे शेप हो जाते हैं तो आपके लिए इतनी अनसर्टेनिटी नहीं, आपके लिए अडेप्ट करने में कुछ आसानी होगी. बिकॉज ऑब्वियसली खाली आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी, आपने उसके साथ साथ अपने प्रोसेसेस, अपने पीपल, अपनी टेक्नोलॉजी, आपकी रिसोर्सेज को भी साथ अपने उसके मुताबिक अरेंज किया. तो एक तो मैं लीडर से कहूँगा कि ऑब्वियसली दे नीड टू थिंक अबाउट सिनेरियो प्लान को ज़रूर एम्ब्रेस करें. उसके अलावा आई थिंक मेक श्योर कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन को लुक इट अप एज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट. इनोवेशन को ना भूलें. और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इनोवेशन इज़ डिफरेंट टाइप्स. प्रोडक्ट की इनोवेशन है बट इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट. आपके प्रोसेसेस की इनोवेशन आपको चाहिए होगी, राइट. लेट्स से ई-कॉमर्स की तरफ आप जाते हैं तो यू हैव टू रिवैम्प योर प्रोसेसेस एंड देन ऑब्वियसली also the talent, people that you have and the training that you provide them and stuff like that. और उसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी इनोवेशन, राइट. सो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर एग्जांपल आपने यूज करना है. सो इनोवेशन के भी डिफरेंट लेंसेज हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने मेंटल ब्लॉक्स को दूर करें एंड ट्राई टू टेक आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव.
rather than an inside out perspective. So ये तो मैं obviously आपके leaders के लिए कुछ टिप्स अगर मैं आपको दूंगा कि जनरली इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या चीज़ें करनी है, तो आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो obviously look at your cost very very carefully, right? So make sure you're cutting down on your expenses. कोई unnecessary spending नहीं, because difficult time है. Survival is the first thing. आप survive करेंगे तो उस पार पहुंच सकेंगे. So I think look at your cost. उसके अलावा stay clear headed, जैसे हमने पहले भी बात की थी, because जब आपका thinking clear नहीं है तो आपकी decisions भी unfortunately सही नहीं होगी. So how can you be clear headed, stay clear headed? That's very very important. उसमें meditation है, उसमें reflection है. Again there are some solutions that you can use. उसके अलावा आई थिंक एक और चीज़ ये है कि बहुत से लोग मसलों की बात करते हैं लेकिन सोल्यूशन की बात नहीं करते. So it's very important कि इस difficult environment में be solution oriented rather than all the time talking about problems. Think with a solution oriented mindset. ये एक बहुत important है. उसके अलावा जो हम पहले बात कर रहे हैं, make sure कि इस time period को आप use करें to skill yourselves up. अपने आप को स्किल करें, अपना खुद जायज़ा लें कौन से आपके एरियाज़ हैं जिनमें आपको डेवलप करना है. तो आपको पता है आजकल बहुत से फोरम भी अवेलेबल है, जो डेमी है, कोर्सेरा है, लिंक्डइन ने भी अपनी ट्रेनिंग बहुत सी फ्री की हुई है आजकल. सो आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो मोटिवेट योरसेल्फ एंड टेक ऑन दोज लर्निंग्स. उसके अलावा आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा कि देखिए, अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपका प्रोडक्ट लाजवाब है, तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे. सो डोंट फॉरगेट कि मेक श्योर कि आपकी जो सर्विस और प्रोडक्ट है इट्स एक्सीलेंट, इट्स आउटस्टैंडिंग, ताकि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें. और फाइनली आई थिंक जिस चीज़ का फुकदान सबसे ज़्यादा है हमारे माशरे में, कुछ लोग हैं वो बातें बहुत करते हैं. इस वक्त खाली बातों से नहीं काम चलेगा. तो लव्स एंड टेक मैसिव एक्शन. So move towards execution and implementation, not just good talk. So I think this is the time to think well, think creatively, think big. एक बड़ी अच्छी quotation है कि think big, start small, learn fast. So I would like to appreciate all these points कि हम लोग के पास काफ़ी learning इन points से हुई है. Even during this answer I learned a lot of new points. और उसमें जिस तरह आपने सिनेरियो की बात की, वो मस्ट हैव टू क्रिएट द मल्टीपल सिनेरियोज. उसके अंदर हम लोगों को डिवीजन्स करनी चाहिए. लाइक मैं यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगा, आईटी के अंदर हम लोगों के पास यूज़ होता है इफ़ एंड एल्स की कंडीशंस. सो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस प्लेस करते हैं. इन द सेम वे हम लोगों को यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा कि इफ़ दिस कंडीशन वी विल हैव टू मूव दिस वे, इफ दिस कंडीशन देन वी विल हैव टू मूव इन दिस वे. ये हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Finally, as I had mentioned at the start of this session, that you are one of the senior most member of the Jump Curve. So what the Jump Curve is doing to address and contribute toward these challenges? What is your contribution to this? तो फरहान बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जंप कर्व, सो हमारी जो टैग लाइन है कंपनी की है, विच इज़ टू हेल्प कंपनीज इनोवेट सो दैट दे थ्राइव, राइट. दैट्स द टैग लाइन. और बट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा फोकस ना सिर्फ कॉर्पोरेट्स के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स के ऊपर. बिकॉज हमें पता है कि जब तक हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम ना किया तो खाली कॉर्पोरेट्स पे या खाली स्टार्टअप पे, तो वो आप सोसाइटी में इम्पैक्ट कर सकते. तो आई थिंक एक तुम्हारा फोकस इन तीनों टेयर्स के ऊपर है, और खास तौर पर इंडिविजुअल्स पे भी है. और स्पेशली इस डिफिकल्ट दौर में हाउ कैन वी मेक श्योर दैट दे आर प्रोडक्टिव, दे आर इंगेज, दे आर मोटिवेटेड, दे आर एबल टू इनोवेट, and they're able to come up with new possibilities, new opportunities. तो हम इन सब स्पेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं. सो दैट इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, दैट इंक्लूड्स हाउ टू हेल्प देम स्ट्रेटेजाइज इन दिस डिफिकल्ट पीरियड, एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स कोचिंग पीपल, बिकॉज कोचिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ट्रेनिंग आप कर लेंगे, लेकिन विद कोचिंग यू कैन पुट दैट ट्रेनिंग टू द बेस्ट यूज, और मेक श्योर करें कि आपकी जो बिहेवियर्स हैं दे आर चेंजिंग मोर परमानेंट. क्योंकि आपको पता है ना, अक्सर लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं और ट्रेनिंग के कुछ देर बाद ही भूल ही जाते हैं कि ट्रेनिंग में हमने क्या लर्न किया. तो उन चीज़ों को एम्बेड करना ताकि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आए. तो हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. So what methodology you are using? Like आप हम लोगों के पास no doubt that you had said that
you are targeting even individuals. तो आप थ्रू स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे यही चीज़ें स्टूडेंट एक जो हम लोगों के पास सेक्टर होता है, ये लेवल है, वहाँ से आप लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं या टू द प्रोफेशनल लेवल? सॉरी, आप दोबारा सवाल पूछेंगे फरहान? आई वुड लाइक टू से कि आपने अभी जो अपने ऑब्जेक्टिव्स एक बताए हैं या आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो आप लोग Sure. वर्किंग इंडिविजुअली लेवल तक भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल जी तक भी, तो ये स्टूडेंट्स को भी आप टारगेट कर रहे हैं या जस्ट यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल Sure. कैरियर्स में जो लोग हम लोग के पास हैं? जी, विदिन जंप कर्व हमारा फोकस तो वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली करियर प्रोफेशनल्स ऑल द वे टू सीईओज। लेकिन हमारी एक और इनिशिएटिव भी है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो बेसिकली फोकस ही खाली स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। उसके अंदर हम जो की चीज़ देखेंगे, बिकॉज ये भी फीडबैक है मार्केट से, एम्प्लॉयर से, हम फोकस करेंगे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की स्किल सेट वो नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए, राइट? सो हम उन गैप्स इन स्किल्स को कवर करना चाहते हैं। तो उसके अंदर येस, विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद यूनिवर्सिटीज़, विद कॉलेजेस एंड विद द स्टूडेंट्स टू मेक श्योर कि पहले उनको असेस करें कि उनका स्किल सेट कौन सा है, फिर उनकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि ये इंडस्ट्री में टॉप 6 या टॉप 7 स्किल्स आपको चाहिए और आप आज यहाँ पर हैं इस स्किल पे, और फिर उनकी हम हेल्प करें उन स्किल्स को डेवलप करने में, ताकि इंडस्ट्री को वो टैलेंट मिले, और जो टैलेंट मिले वो फटाफट दे कैन गेट टू स्पीड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग मच मोर क्विकर, और ताकि इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज को भी दोबारा ट्रेनिंग के ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े जो वो करेंटली कर रहे हैं। सो दैट्स द विन विन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट दैट इनिशिएटिव। I place this question at this point because हम लोगों के पास मेजर इश्यूज ये आ रहा है कि हम लोगों के पास ग्रेजुएट्स हम लोगों के पास विद इन अ ईयर थाउजेंड्स में आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों के पास इंजीनियर्स आ रहे हैं, आईटी गाइज आ रहे हैं, बट बिल्कुल दे आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रोफेशनली कि आप जब मार्केट में जाओगे तो व्हाट आर द नीड्स फॉर देम, क्योंकि हम लोग के पास यस करिकुलम जो एक चल रहा है दैट्स 1980s का एक चल रहा है. So that's why I had placed this question that whether you are also targeting the श्योर। students or just the professionals. नहीं, आप सही कह रहे हैं। उसमें सिर्फ ना एक वेरी क्विकली टू ऐड अनदर थिंग, एक वजह इसकी ये भी है कि हमारे जो करियर ऑफिस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, with the exception of few universities in Pakistan, जिनके careers office, they are well resourced and they are much aware, but बहुत सौ के अंदर unfortunately भी awareness नहीं है, और staff की जो resources हैं उनके पास, उनकी they are not really up to date with what the requirements are in industry. So एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें फोकस ऑल्दो स्टूडेंट्स होंगे, बट एट द सेम टाइम we will also have to work very closely with the management of the universities and their career offices, ताकि उनकी भी आप ट्रेन द ट्रेनर टाइप एक्टिविटीज़ कुछ करवा Exactly. सकें, ताकि उनके स्टाफ भी मोटिवेटेड है एंड दे नो व्हाट द डिमांड इज इन इंडस्ट्री। Exactly. So I think much of the points have been cleared, or I would like to thank you once again for all these points, all these advices जो हम लोगों के पास लीडरशिप के लिए आपने की हैं, स्टूडेंट्स के लिए की हैं, फॉर द एसएमई स्टार्टअप्स, और ये आज का जो हम लोगों का सेशन था दैट्स अ ह्यूज एंड ब्रीफ सेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स को कवर किए, स्पेशली इन द करंट एज जो हम लोगों के पास इश्यूज आ रहे थे उन सबको हम लोगों ने कवर किया. So on the behalf of whole team of Jumpstart, Investin, Elegant Digital Signage, I would like to thank you कि आपने हमें टाइम दिया, and final remarks from your side, sir, please. No, Farhan, I think thank you for the opportunity. I think this is a great initiative that you are doing on behalf of Jumpstart. I did cover a lot of topics, and I'm very passionate about these areas. But if there's any specific topic any of your audience wanted to go deeper, you can always talk offline as well. So, but I enjoyed the discussion, and thank you for inviting me. You're always welcome, sir. Inshallah, hope to see you in the coming sessions. Inshallah. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz, sir.